Hello students, today we will start with our very important topic from mathematics, that is parallel lines is the name of our topic. Okay, parallel line is very important topic जिससे connected different angles हमको इसमें study करने होते हैं. Okay, so before starting do like our channel and subscribe our channel so that you can get different videos of different topics जहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन उसका जरूर मिलेगा. So let us start with our topic, that is parallel lines. Okay, so by seeing the name देख के पढ़ के हमको क्या समझ में आ रहा है कि parallel line का मतलब क्या हो सकता है. Yes, you can give answer in our comment box कि parallel line का मतलब क्या हो सकता है. Okay, so you can comment in comment box so that I can get the knowledge what you have regarding parallel lines. Okay, तो parallel line से connected किसे बोलते हैं parallel line, ये आप comment box में लिख सकते हो. So let us start. What is mean by parallel line? That is parallel lines which are coplanar and do not intersect each other are called as parallel lines. ऐसे lines जो एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे और एक ही प्लेन में रहेंगे are known as parallel lines. So definition is very simple. Parallel का मतलब है जो एक दूसरे को intersect नहीं होने वाले. That is, you can say that line L and line M are parallel lines. So parallel line का मतलब क्या होता है सबको समझ में आ रहा है. Parallel lines, the lines which are coplanar do not intersect each other are called as parallel lines. Now let us study what is mean by ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है. दैट इज अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब है ऐसे लाइन जो बाकी दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. सो यू कैन सी इन द डायग्राम दैट these are the two lines, these are two any lines, line L and line M are any lines, and say line N is a transversal which intersect these two line at two distinct point, that is P and Q. So this line is known as transversal. So transversal का मतलब ऐसे लाइन जो बाकी दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, that is known as transversal. Okay, so parallel line and what is mean by transversal. So these are the two things जो अब तक हमने कवर किया है. आपको क्लियर हुआ है what is mean by parallel line, what is mean by transversal. Okay, so what are parallel lines? Parallel lines are lines, coplanar lines which do not intersect each other, and transversal is the line that intersect two or more lines into distinct points. So it is very simple. Okay, now we'll move ahead. That is, line N is transversal of line L and M. So line N is transversal of line L and M. मतलब लाइन N है जो ट्रांसवर्सल है, जो इन दोनों लाइन को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. देन 8 एंगल्स आर फॉर्म. टोटल 8 एंगल वहां पे फॉर्म हो रहे, A B C D E F G H. टोटल देयर आर 8 एंगल्स. ठीक है, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट अगर करने वाला है तो टोटल at 1.4 angles and second intersection point 4 angles, total 8 angles get formed. Okay, we can divide these 8 angle into different category, that is exterior angle and interior angle. Okay, you can comment in comment box कि exterior angle इसमें से कौन कौन से हैं और interior कौन से. Okay, now comment आपका आंसर कमेंट कीजिए कि यहां पे exterior angle कौन से हैं and which are the interior angle. Okay, which are exterior and which are interior angles. Okay, so let us study exterior angles और interior angle कौन से यहां पे आने वाले हैं. That is, exterior angles are here A D F G are exterior angles, and interior अंदर जो एंगल है वो कौन से, that is B C E H. Okay, angle B, angle C, angle E, angle H are interior angle. So it is very simple. It is very simple. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको अपने चैनल पे मिलेंगे. So do subscribe our channel. Moving ahead, यहां पर line N is a transversal of these two lines.
टोटल 8 एंगल्स हमारे पास है, टोटल 8 एंगल्स हमारे पास है, एंड आउट ऑफ दैट 8 एंगल्स वी कैन कैटेगराइज देम एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर. एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल डी, एंगल एफ, एंगल जी जो बाहर की तरफ है आर एक्सटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई, एंगल एच आर इंटीरियर एंगल्स जो अंदर की तरफ है दोनों लाइंस के. ओके, सो these are exterior and these are interior angles. Now these angles can be categorized in 4 different ways that are known as angles of parallel lines. That is, line N is transversal of line L and M. As we have learned कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला है तो टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म. ओके, एंड these 8 angles can be categorized in pairs of corresponding angles, pair of alternate interior angle, pairs of alternate exterior angle, and pairs of interior angle. Okay, now let us study what are corresponding, what are alternates, what are interior angles. So total 8 angles वहां पर है. Pairs of corresponding angles, identification sign is F. Okay, अब ये F लिखा हुआ किसी टेक्स्ट बुक में हमको नहीं मिलने वाला है. Okay, this is the idea जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल अपने डायग्राम में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, दैट इज अभी यहां पे जो एफ है करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए उसको मैं डायग्राम में अभी लिखने वाला हूं. देखो कैसे बनेगा एफ. ओके, कोई भी अल्फाबेट कैसे बनाएंगे हम लोग इसमें शॉर्टकट के लिए कि दो लाइंस और ट्रांसवर्सल ये तीनों उसमें आना चाहिए. जैसे ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. ओके, तो एफ बन गया. देखो अभी यहां पे एफ का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग आने वाले यहां पे, ये एफ दिख रहा है हमको. ऊपर वाला एंगल डी, लाइन के ऊपर वाला एंगल एच इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. एज वेल नीचे वाला एंगल सी एंड जी आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल डी एंड एंगल एच, ऑल्सो एंगल सी एंड एंगल जी. ओके, अभी यही एफ अगर मैं ये साइड बनाऊंगा, अगर यही एफ अगर मैं ये साइड बनाऊंगा तो ये साइड मैंने एफ बनाया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए, ई, बी, एफ. सो देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल एफ. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अवर डायग्राम. ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ. करस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका एफ. अगर हम लोग डायग्राम में रफ में ऐसा एफ बनाते हैं तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें से कौन से हैं. ठीक है, नाउ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, सो फॉर दिस Z को हम लोग यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द एंगल्स. अगेन ये किसी बुक में हमको नहीं मिलने वाला है. ओके, नाउ हम लोग अपने डायग्राम में विल गो फॉर Z. अभी हम लोग Z बनाएंगे, मतलब दो लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल यूज करेंगे. दैट इज दो लाइन और उसका ट्रांसवर्सल. ओके, यू कैन सी Z हियर. तो Z में जो एंगल आए हुए हैं दैट एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अल्टरनेट Z बना. इंटीरियर क्यों, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा है ऑलरेडी. ये अंदर वाले एंगल्स आर इंटीरियर, बाहर वाले एंगल्स आर एक्सटीरियर. सो इन दिस Z, B and H is a pair of angle. B and H is a pair of angle which is alternate interior. Now exactly same way, अगर मैं ये Z ऐसा उल्टा बना देता हूं like this, ऐसे, तो Z में कौन से एंगल आने वाले हैं, C and E. सो C and E. सो these are the pair of alternate interior angle. alternate है और इंटीरियर है, अंदर वाले है. ओके, सो दिस इज द पेयर ऑफ alternate interior angle. Now we'll move to next, that is pair of alternate exterior angle. alternate है लेकिन एक्सटीरियर है. एक्सटीरियर मतलब वो बाहर वाले एंगल. ओके, अल्टरनेट के लिए यूज क्या करना है, Z यूज करना है. तो वापस ये पहले वाला Z में यूज करूंगा, ये वाला.
लेकिन इस बार मैं एक्सटीरियर लूंगा। जैसे ये Z है यहां पे, इसके बाहर वाला एंगल है A और यहां पर है G, तो A एंड G आर पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज वेल। ऐसा अगर मैं Z करता हूं तो ये D एंड F, द पेयर ऑफ alternate exterior angles. Okay, so clear with this? Now interior angles. C is the identification. मतलब अपने इस डायग्राम में हम लोग अगर C बना देते तो हमको दिख जाएगा कि इंटीरियर एंगल कौन से, ठीक है। तो अभी अपने डायग्राम में हम लोग विल गो फॉर C नाउ, दैट इज C, दैट इज पेयर कौन सा आएगा, C एंड H। अच्छा, अगर ये C में ये साइड बना देता हूं तो क्या आएगा पेयर, B एंड E। सो यू कैन सी दैट B एंड E आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। C एंड H आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो उसको एक ही साइड पे इंटीरियर कौन है, B एंड E। अगर ये ट्रांसफर है तो वो साइड पे, एक ही साइड पे इंटीरियर कौन है, C एंड H are interior angles. So in this what we have learned कि अगर कोई भी दो लाइंस हमारे पास है और एक ट्रांसवर्सल हमारे पास है, कोई भी दो लाइंस अगर हमारे पास है and we have one transversal with us, तो we can categorize all angles, corresponding angles, then alternate interior, alternate exterior and interior angles on same side of transversal। इसमें हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और कैसे करना है वो मैंने आपको बोला। आइडेंटिफिकेशन याद रखने के लिए अपने से कोई गलती ना हो एग्जाम में सॉल्व करते वक्त, इसलिए मैंने आपको यह भी दिखाया। नाउ आवर हेडिंग, अपना चैप्टर क्या था, टॉपिक क्या था अपना टॉपिक क्या था, पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है नहीं, अभी इसी कंसेप्ट को मैं अभी पैरेलल लाइन में लिखने वाला हूं। इसी कंसेप्ट को मैं अभी पैरेलल लाइन में लिखूंगा, दैट इज लाइन L, लाइन M आर पैरेलल लाइंस। ओके, अभी ये दोनों लाइन, इसके पहले वाले स्लाइड में क्या था कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं थे, बोला नहीं था कि पैरेलल है करके। नाउ दीज आर द टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। एंगल तो सेम है, 8 एंगल तो बनने वाले, देयर आर 8 एंगल्स। सो these are the two lines and line N is a transversal। then what will happen with the angles, corresponding angle के साथ क्या होगा, alternate angle के साथ क्या होगा, इंटीरियर एंगल के साथ क्या होगा, ये हमको पता चलेगा। दैट इज एंगल के पोजीशन तो हमारे लिए सेम ही रहेंगे। दैट इज दीज आर द लाइंस विच आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में F बोला था, ओके, तो F में D एंड H, C एंड G। ये साइड अगर मैं F ड्रॉ करूंगा, A एंड E, B एंड F आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है तो यहां पे क्या लिखा है देखो, अभी D कॉन्ग्रुएंट टू H, C कॉन्ग्रुएंट टू G, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। It means we can say that if two lines are parallel and a transversal is there, means if a transversal intersect two parallel lines, then corresponding angles are congruent। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने कैसे लिखा था, एंगल D एंड एंगल H, हमने एंगल आइडेंटिफाई किए थे। इसमें हम लोग एंगल में क्या रिलेशन है वो हम लोग बता रहे। इट मींस इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, corresponding angles formed are congruent, are equal। दोनों corresponding एंगल जो भी फॉर्म होने वाले हैं, they are equal angles। okay, now नेक्स्ट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मैंने आपको बोला था Z ड्रॉ करके, अल्टरनेट इंटीरियर हमने Z ड्रॉ किया था। तो Z में कौन से एंगल आए थे, BH, C एंड E। एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल वी कैन से दैट, देखो अल्टरनेट B एंड H, C एंड E, alternate angles are also equal। so this is the relation between alternate angles, alternate interior angles। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो alternate interior angles are always equal।
ओके, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। आर यू गेटिंग दिस? कुछ समझ में आ रहा है? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्यूरिंग दिस, जो भी चल रहा है उसमें अगर कुछ समझ में ऐसा है कि नहीं आ रहा है या फिर कोई डाउट है, तो यू कैन व्हाट्सअप ऑन द फॉलोइंग नंबर, जो नीचे नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके अपना आंसर पूछ सकते हो। ओके, नाउ ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए था। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, सो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए हमने भी जेड था हमारे पास, लेकिन हम लोग बाहर वाले एंगल देख रहे थे। तो अगर ये जेड रहेगा हमारे पास लाइक दिस, तो ए एंड जी आर अल्टरनेट एक्सटीरियर, डी एंड एफ आर अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसमें क्या रिलेशन है? अच्छा, दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ? इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि अगर 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 दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल and we have a transversal, if a transversal intersect two parallel lines, then corresponding angles are congruent, alternate interior angles are congruent, alternate exterior angles are congruent, and about interior angles on same side of transversal, यहां पे लिखा है देखो C बनेगा यहां पे, तो C से क्या होगा? एंगल B एंड एंगल E, एंगल C एंड एंगल H are the pair of interior angle that is equal to 180 डिग्री। इसका मतलब if two lines are parallel, then interior angles on same side of transversal are supplementary, are supplementary। supplementary का मतलब दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। सो दीज आर द एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो angle B plus angle E is equal to 180 degree, as well angle C plus angle H is equal to 180 degree. So overall, if a transversal intersect two parallel lines, then we have corresponding angles congruent, alternate angles congruent, and interior angles are supplementary. Alternate interior, alternate exterior, all are equal. Okay, so if two lines are parallel, then corresponding angles are congruent, or you can say they are equal. Alternate angle are equal and interior angles are also equal. Okay, तो ये हो गया कंसेप्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ओके, अभी हम लोग जब क्वेश्चन में ये सब सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग जब क्वेश्चन में ये सब सॉल्व करेंगे, तभी अपने क्वेश्चन में ऐसा नेमिंग तो नहीं रहेगा A B C D। हमारे पास क्वेश्चन में नेमिंग कैसे रहेगा? पूरा लाइन है, पूरे लाइन को नेमिंग किया हुआ है A B C D E F D K G H एक्सेट्रा। तो ये स्पेसिफिक एंगल्स का नेमिंग है, लेकिन हम लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, तो हमारे पास नेमिंग इस तरह से नहीं रहेगा। देन व्हाट विल हैपन? देखो यहां पे अभी लाइन ए बी, पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन ई के इज अ ट्रांसवर्सल। सो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरह से नेमिंग रहेगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल? आइडेंटिफिकेशन को पता है, हमको ये सीखना है कि हम लोग नाम कैसे लिखेंगे उसका। ओके, सो line AB and line CD are parallel, line EK is a transversal. We all know कि corresponding angles are congruent, alternate angles are congruent, interior angles are supplementary. Okay, now we need to write the names of angles with 3 alphabets. Okay, जैसे यहाँ पे नेमिंग दिया है उसके हिसाब से हमको इसका नाम लिखना है। चलो आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लिखो कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग आएगा, कौन से एंगल अल्टरनेट आने वाले हैं, कौन से एंगल इंटीरियर आएंगे। यू कैन कमेंट in our comment box कौन से एंगल which are corresponding angles, which are alternate angles and which are interior angles. You can comment in our comment box. Therefore, pair of corresponding angle is, we know that corresponding angle के लिए we have F. Therefore, F दिख रहा है corresponding angle के लिए। So EHB HGD is a pair of corresponding angle. EHB HGD is a pair of corresponding angle. डाउन साइड में देखेंगे तो BHG and DHK and DGK. So BHG and DGK is a pair of corresponding angle. We know that corresponding angles are equal. Okay, after that अगर वो F मैं ये साइड पे बनाऊंगा तो अपना एंगल फॉर करस्पॉन्डिंग AHE is equal to CGH. ओके, उसके बाद AHG एंड CGK
AHG and CGK is a pair of corresponding angles. Okay, as AB and CD are two lines are parallel, corresponding angles are equal, or you can say they are congruent. Okay, now pair of alternate interior angles. So for alternate we have Z with us, that is ओके तो Z के अंदर जो आएंगे दैट आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्सो दे आर इक्वल, प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने ऑलरेडी। तो एंगल का नाम हम लोग लिखेंगे AHG HGD, AHG HGD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल। अच्छा अगर मैं उल्टा Z बना देता हूं तो BHG HGC, BHG HGC आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ इफ you go for pair of alternate exterior angle, then क्या होगा, Z तो है वहां पे, ओके एक्सटीरियर एंगल तो AHE congruent to DGK, वो साइड अगर हम लोग चलते हैं तो EHB and CGK are the pair of alternate exterior angle. Now for pair of interior angle on same side of transversal, okay, so उसके लिए मैंने आपको बोला था कि सी रहेगा अपना आइडेंटिफिकेशन, ओके सो BHG HGD, BHG HGD, BHG angle BHG plus angle HGD is equal to 180 degree because we know that interior angles are supplementary. ओके अगर वो सी में ये साइड बनाऊंगा तो एंगल कौन से आएंगे, AHG and HGC, angle AHG plus angle HGC is equal to 180 degree because interior angles are supplementary. Okay, so this is the concept of corresponding alternate and interior angles when the two lines are given as parallel. Hope so the concept is clear with you people. So therefore what we can conclude, if two parallel lines intersected by transversal, what we can conclude is, if two parallel lines are intersected by transversal, then corresponding angles are congruent, alternate angles are congruent, interior angles are supplementary. Okay, so this is very simple concept which is there in our syllabus. So ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको अपने चैनल पे देखने मिलेंगे. So please do like and subscribe our channel. Thank you.